السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایم جے اسٹوڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید 6 سفر 1440 ہجری بمطابق 15 اکتوبر 2018 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. خاشقجی کی گھڑی کتنی حقیقت کتنا افسانہ. ترک اخبار صباح نے یہ دعویٰ کر کے کہ جمال خاشقجی نے اپنی گھڑی سے آڈیو پیغام ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں دروغ بیانوں کی فہرست میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ کر دیا. ٹیکنالوجی کی دنیا کے مشہور تکنیکی ماہر زیک نے اس دعویٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ جمال خاشقجی ایپل والی گھڑی استعمال کر رہے ہیں. اس سے تو نہ کچھ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی آڈیو پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور اس میں فنگر پرنٹ کے ذریعے اسے کھولنے کی خصوصیت بھی نہیں. گھڑی کی بابت جو دعوے کیے گئے ہیں وہ سب کے سب من گھڑت ہیں. عالمی صحافت نے اس حوالے سے ترک حکام پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ترکی حکام کے پاس ابھی تک جمال کی گمشدگی کی بابت کوئی ٹھوس ثبوت نہیں اسی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. وزارت انصاف میں خواتین کا خود مختار ادارہ. وزارت انصاف نے واضح کیا ہے کہ خواتین کے لیے وزارت میں خود مختار ادارہ اور نائب وزیر کا منصب قائم کیا جائے گا. وزارت انصاف کا نیا ڈھانچہ استوار کیا جا رہا ہے. سعودی کابینہ نے گزشتہ ہفتے نئے انتظامی ڈھانچے کی منظوری دے دی. اس کے مطابق ایک تو نائب وزیر کی تقرری عمل میں آئے گی, دوسرے نمبر پر معاون وزیر برائے منصوبہ بندی کا عہدہ بھی شروع کیا جائے گا. اس کے علاوہ وزارت انصاف میں خواتین کے لیے مستقل ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. افغانستان میں دہشت گردی پر سعودی عرب کا اظہار مذمت. سعودی دفتر خارجہ نے افغانستان کے شمال مشرقی علاقے تہار میں انتخابی اجلاس پر دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی. اس حملے میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. سعودی عہدیدار نے واضح کیا کہ سعودی عرب دہشت گردی اور تخریب کاری کے ہر عمل کو مسترد کرتا ہے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف افغانستان کے ساتھ ہے. سعودی عہدیدار نے مذکورہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں, افغان عوام اور حکومت سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو ظاہر کی. خلیجی ممالک میں سعودی عرب پہلے نمبر پر. سعودی عرب نے خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ تحقیقی مقالے اور کتابیں جاری کی. پوری دنیا میں اس حوالے سے سعودی عرب کا 43واں نمبر ہے اور خلیجی ممالک کی سطح پر پہلا نمبر ہے. سعودی عرب نے 1996 اور 2015 کے دوران 1,55,000 تحقیقی کتابیں اور مقالے شائع کرائے. متحدہ عرب امارات کا عالمی سطح پر 59واں, کویت کا 71واں, قطر کا 73واں, عمان کا 81واں اور بحرین کا 111واں نمبر ہے. 4,21,411 عمرہ ویزوں کا اجرا. محرم 1440 ہجری سے لے کر 2 سفر 1440 ہجری تک عمرے کے 4,21,411 ویزے جاری کیے گئے. روزانہ 13,169 عمرہ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں 1,41,690 معتمر آ چکے ہیں جبکہ فی الوقت 1,50,429 معتمرین ارض مقدس میں موجود ہیں. سعودی تحقیقاتی کمیشن ہی گتھی سلجھا سکتا ہے. ایک طرف تو عالمی ذرائع ابلاغ اور دوسری جانب الاخوان المسلمین کے کرتا دھرتا سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی کی بابت مطلع گرد آلود کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عالمی رائے عامہ کو من گھڑت رپورٹوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب سعودی تحقیقاتی کمیشن ترک سیکیورٹی حکام کے تعاون سے خاشقجی کی گمشدگی کی گتھی سلجھانے میں لگا ہوا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی تحقیقاتی کمیشن ہی خاشقجی کی گمشدگی کی گتھی سلجھائے گا. کمیشن کو اس بات سے گہری دلچسپی ہے کہ اپنے ہم وطن کے انجام تک رسائی حاصل کر سکے. خالد الفیصل نے شہزادہ عبداللہ کو قائم مقام گورنر بنا دیا. مکہ مکرمہ کے شہزادہ خالد الفیصل نے چھٹی کے دوران شہزادہ عبداللہ بن بندر کو مکہ مکرمہ کا قائم مقام گورنر بنا دیا. شہزادہ عبداللہ بن بندر نائب گورنر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں.
क्या तुर्की में सऊदी طیاروں को उतरने से रोका गया? सऊदी एयरलाइन के बोइंग 777 के कैप्टन अली अल जासर ने वाजे किया कि सऊदी अरब के 2 प्राइवेट طیاروں को अतातुर्क एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने का दावा सरासर गलत है। अल जजीरा चैनल ने जो दावा किया कि सऊदी एयरलाइन के 2 طیاروں को अतातुर्क एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई, बिल्कुल गलत है। अल जासर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर यह इतला देते हुए तवज्जो दिलाई कि कोई भी त्यारा अपनी मंजिल से रवाना होने से पहले ही मुतलका मुल्क के एयरपोर्ट पर उतरने का इजाजतनामा ले चुका होता है। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अभी तक कोई रस्मी बहरान नहीं। बहरान के हवाले से जराए अबलाग में चीखो पुकार चल रही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। झूठे इल्जामात हमारा बाल बीका नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने खबरदार किया कि अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सऊदी अरब बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम में मुअस्सर और फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब का इक़्तिसादी निज़ाम बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम के मुतासर होने पर ही मुतासर होगा। इक़्तिसादी पाबंदियाँ, सियासी दबाव का इस्तेमाल और मन घड़त इल्जामात दोहराना किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी धमकी और झूठे इल्जामात हमारा बाल बीका नहीं कर सकते। इस किस्म की हरकतों से आलम इस्लाम, अरब दुनिया और आलमी सतह पर सऊदी अरब के मकाम और मर्तबे और उसके मजबूत किरदार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सऊदी ओहदेदार ने इतवार को वाजे किया कि मौजूदा मुहिम का हशर भी वही होगा जो माजी में इस तरह की हरकतों का होता रहा। सऊदी अरब और उसकी अवाम और हुक्मरान हर तरह के ताबड़तोड़ दबाव और मुश्किल से मुश्किल तर सूरत हाल का मुकाबला साबित कदमी से करेंगे। सऊदी ओहदेदार ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब ने अरब दुनिया और आलमी इस्लाम के कायद की हैसियत से इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम नीज बैनुल अक़वामी खुशहाली में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया। सऊदी अरब अब भी बरादर और दोस्त ममालिक के साथ मिलजुल कर मज़कूरा अहदाफ की तकमील के लिए कोशां है। इस सिलसिले में अर्दुल वही और अर्दुल किबला होने की बदौलत अपनी मखसूस हैसियत से मज़कूरा अहदाफ को बरूए कार लाने में लगा हुआ है। सऊदी अरब ने मन घड़त झूठे दावों का मुकाबला करने के सिलसिले में बरादर ममालिक की हिमायत और दुनिया भर के उन आसाब फरासत लोगों के लिए कदर मंजलत का इजहार किया जिन्होंने अफवाहों पर कान धरने और इल्जामात को तस्लीम करने के मुकाबले में हक की तलाश को तरजीह दी और जल्दबाजी में बुर्दबारी का एहतमाम किया। इन अफवाहों और इल्जामात को दरखोरे एतना नहीं समझा और जिनका हदफ और एजेंडा तलाश हक की बजाय कुछ और है। जमाल खाशोगी को गायब करने का इल्जाम काउंसलर के बेटे पर। तुर्की के चैनल NTV ने जमाल खाशोगी के कत्ल का इल्जाम तुर्की में जेर तालीम सऊदी काउंसलर के बेटे पर लगा दिया। सऊदी काउंसलर का बेटा इस्तांबुल में मेडिसिन का तालिब इल्म है। इल्जाम लगाने वाले चैनल ने अपने यहाँ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के वकार का भी एहतराम नहीं किया। तुर्क टीवी का कहना है जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस अफराद में सऊदी काउंसलर का बेटा भी शामिल है। बाद में जब NTV को अपनी गलती का सबूत मिल गया तो उसने साबका रिपोर्ट की तरदीद कर दी। सऊदी काउंसलर का बेटा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में MBBS कर रहा है। 91 बरस पुरानी कार कहाँ है? 70 साल सऊदी शहरी नासर अल इमरानी ने पुरानी 11 कारें जमा करके नायाब गाड़ियों का शोरूम कायम कर दिया। अल इमरानी को पुरानी कारों की इस्लाह मुरम्मत के अपने यहाँ रखने का शौक है। उन्होंने 91 साल पुरानी गाड़ी ठीक करके अपने शोरूम में पेश की। ये शुमाली सऊदी अरब पहुंचने वाली सबसे पुरानी कार मानी जा रही है। अल इमरानी तबूक रीजन की हगल कमिश्नरी में सकूनत पजीर हैं। वो अपनी औलाद की मदद से नायाब पुरानी कारें तलाश करते रहते हैं। इस्लाह मुरम्मत के लिए पुर्जों की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों और शहरों का सफर भी करते हैं। वो गुज़श्ता 20 बरस से ये काम दिलचस्प मशगले के तौर पर कर रहे हैं। उनके पास 1927 मॉडल की फोर्ड कार महफूज है। इस तरह की 11 गाड़ियां महफूज कर चुके हैं। वो नायाब गाड़ियां कारोबार की गर्ज से नहीं बल्कि दिलचस्प मशगले के तौर पर खरीदते और उनकी इस्लाह मुरम्मत करके उन्हें शोरूम में रखते हैं। कतरी मीडिया ने मरे हुए शख्स को भी खाशोगी का कातिल करार दे दिया। कतरी मीडिया ने सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल और उन्हें मंजरनामे से गायब करने का जिम्मेदार जिन 15 सऊदी अफसरान को ठहराया है उनमें से एक अब्दुल अजीज शबीब अल बलवी भी है। ये 2016 के दौरान
ट्रैफिक हादसे में जहां बहक हो चुके हैं। कतरी मीडिया सऊदी अरब के खिलाफ इल्जाम तराशी में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो जिंदा अफराद ही नहीं बल्कि जहां बहक हो जाने वालों को भी अदालत के कटहरे में लाने में कोई आर महसूस नहीं कर रहा। मक्का मुकरमा में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत। मक्का मुकरमा में आज इतवार को दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड है। ये सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा है। दमाम, अल अहसा, हफर अल बातन में इतवार को दर्जा हरारत 39, मदीना मुनव्वरा में 38 जबकि रियाद और जद्दा में 36 रिकॉर्ड किया गया। मदीना मुनव्वरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नई फैकल्टी का इजाफा। मदीना मुनव्वरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ सऊदी कवानीन और अदालती अमूर की तदरीस और तहकीक करने वाली फैकल्टी के क्याम का फैसला कर लिया। इसकी बदौलत जामिया इस्लामिया की फैकल्टी की तादाद 9 हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर हातम अल मरजुकी ने अकाज अखबार से गुफ्तगू करते हुए वाजे किया कि मज़कूरा फैकल्टी के क़याम का फैसला क़यादत राशिदा के उस जज्बा की देन है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लाम और उसके पैरोकारों के साथ सऊदी अरब और उसके फर्जंदों की खिदमत भी एहसन शक्ल में अंजाम दे। मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी 1381 हिजरी में कायम की गई थी। शुरुआत अल शरिया कॉलेज से की गई। सऊदी कारकुनान की शरह में 18.7% का इजाफा। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने वाज़ेह किया कि निजी इदारों में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में 18.7% का इजाफा हुआ। 1,04,288 सऊदी कारकुन प्राइवेट इदारों में शामिल हुए। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट इदारों के कारकुनान की मजमूई तादाद 96,86,974 हो गई। इनमें गैर मुल्की कारकुनान की शरह 81.3% से तजावज़ कर गई। गैर मुल्की कारकुनान की मजमूई तादाद 79,07,514 हो चुकी जबकि सऊदियों की मजमूई तादाद 1,79,046 हो गई। यह अदाद-ओ-शुमार 1438-39 हिजरी की रिपोर्ट में उजागर किए गए। रिपोर्ट मजलिस शूरा को पेश की गई। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी तरह आपको रोजाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने ये वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देखी।